Good morning. Good morning. Good morning, dear students. I can't hear you. आवाज नहीं आ रही आप लोगों की. सुबह ब्रेकफास्ट नहीं मिला आप लोगों को. I must thank principal of this excellent school, respected sister, and honorable guest of the dais. First of all, for inviting me to this excellent college, school. And second, it's such a good exhibition they have planned, they have organized. And such exhibitions are actually very important. Very important for the students, for the budding scientists. Before I start, I have two confessions to make. First is my first school was a convent school, St. Mary's. And second, sister spoke about computer science exhibition, some exhibition of on artificial intelligence subjects. I am a computer science graduate from an engineering college, from an IIT, and I have worked in software industry in India, in Europe for about 6 years. So I encourage students to ask questions, to defy the existing norm that they think that they are right, and go on doing experiments. Every experiment is important. Every experiment. Even if you fail 1,000 times, you learn 1,000 way of doing, not doing in a way. The great scientist of last century, Thomas Alva Edison, before inventing the electric bulb, he made 1,100 unsuccessful experiments. People mocked him. You have failed 1,100 times. What are you doing? You are not a great scientist. He replied back, I have learned 1,100 ways of not doing the things. So I have closed 1,100 doors, 1,100 options. Now I will succeed. And he succeeded in the next one. So such dedication, such commitment, such perseverance is very much required if you want to become a scientist. And science and scientists, both, they have been the truest servant of the mankind. Truest. And I'll say the greatest servants of the mankind. If you talk about India, our country, we experienced COVID in 2021, 2022. Horrible COVID. 2020. Lakhs of people died. But we coped up. Our medical faculties, our doctors, our cleaning staff, our policemen, and the entire society at large, we fought it back and we defeated it. Now we can assemble here. It was not possible in April 2020. Was it possible? No. We are here without wearing any mask. And do you know why it is possible? Because of science. Science invented the vaccine, and because of that vaccine we are here. And I am before you. I got infected thrice. I got infected in 2020, 21 and 22. Thrice I got infected, but because of science, I am standing before you. Same, about 100 years back, when the entire world experienced the flu, Spanish flu, just after the First World War. The population of India, first time in the Indian history, declined. So 1921 census, the population of it. Are you getting me? Parents को हिंदी इंग्लिश समझ में आ रही है कि मैं हिंदी में आऊँ? आपसे पूछ रहा हूँ मैं नहीं जानता कि केवल 10% मेरी बात को समझे, 90% ना समझे। हिंदी की इंग्लिश आप लोग बताओ।
तो मैं ये बस इतना कह रहा हूँ कि 2020 में जब हमारे देश में पूरी दुनिया में कोविड आया तो सबने देखा होगा कि कितना हम लोगों ने संघर्ष किया, सबने संघर्ष किया। कई लोगों ने मास्क घर पे बनाए, कई माताओं ने मास्क बनाए, जेल में हमारे स्टाफ ने मास्क बनाए, पुलिस लाइन में मास्क बनाए, कई हमारे गरीब लोग, मजदूर लोग जिनके पास, क्योंकि फैक्ट्रीज बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, तो उनको हम लोगों ने खाना खिला, आप लोगों ने खाना की बंदोबस्त किया, क्योंकि उनके पास डेली वेजर्स थे। अगर किसी की ठेली बंद हो जाएगी तो उसके पास कहाँ से पैसा आएगा, क्या खरीदेगा? तो सोसाइटी ने उनको सस्टेन किया। सोसाइटी ने एक समय दिया जिससे साइंस वैक्सीन बना सके, और फिर साइंस ने वैक्सीन बना के दी जिससे लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जान बच गई। ये स्पेनिश फ्लू के टाइम संभव नहीं था। भारत की जनसंख्या पहली बार, जब से रिकॉर्डेड सेंसस शुरू हुई 1881 से, पहली बार भारत की जनसंख्या कम हुई थी। स्पेनिश फ्लू में हिंदुस्तान में लाखों, इनफैक्ट करोड़ों लोगों की डेथ हो गई, जिससे भारत की जनसंख्या कम हो गई, क्योंकि साइंस उतना डेवलप नहीं था, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं, जिस कारण हमारी जनसंख्या कम हुई। 100 साल में हम लोगों ने इतनी तरक्की कर दी, केवल साइंस के आधार, केवल साइंस और कुछ नहीं। ना हमारे पास अगर इतने अच्छे डॉक्टर्स होते, ना हमारे पास इतने मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होते, ना हमारी दवा फैक्ट्री इंडस्ट्री इतनी अच्छी होती, तो शायद हम कुछ नहीं करते। तो साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, जिसमें आप सब खेती के बारे में, बागपत इज फेमस फॉर एग्रीकल्चर, गन्ने की खेती दिखाई देती है यहाँ पे, और पूरे यूपी में गन्ना, गेहूं, चावल, हर एक के उत्पादन होता है। आज से 60 साल पहले हम लोग अमेरिका से अनाज को हम लोग वहां से लाते थे, वी यूज्ड टू इंपोर्ट, हम इंपोर्ट करते थे। मतलब भारत एक कृषि प्रधान देश सदियों से रहा है, सदियों से, हजारों सालों से। हमारी सभ्यता, जो पुराने जो हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, वो दर्शाता है कि हम लोग वहाँ पे खेती करते थे, चाहे मोहनजोदारो का हो, चाहे मेहरानगढ़ हो, चाहे कोई भी पुरानी साइट आप देख लो, कहीं चावल की खेती के अवशेष मिलते हैं, कहीं गेहूं की खेती के अवशेष लेकिन मिलते हैं, बार्ले के मिलते हैं। तो वो देश जो हजारों सालों से केवल खेती करता रहा, उस देश को 1960 के पहले हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता था अमेरिका से। अमेरिका हमको गेहूं देता था, सोचो, ये देश की स्थिति थी उसमें। और केवल ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हम लोग इतने सक्षम हो चुके हैं कि अब हम बाहर को अपना गेहूं देते हैं, अपना चावल। कैसे संभव हो? साइंस, केवल साइंस और कुछ। तो बच्चों की मैं केवल आपके लिए कह रहा हूं कि साइंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ह्यूमैनिटीज को एकदम डाउन कर दो, नो, ह्यूमैनिटीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ह्यूमैनिटीज तभी इंपॉर्टेंट है जब देश में संपन्नता है, देश डेवलप हो। आर्ट, कल्चर, ह्यूमैनिटीज और सारे सब्जेक्ट एक डेवलप कंट्री में अच्छे ज्यादा लगते हैं। अगर हमारे पास खाने को नहीं होगा, हमारे पास रहने को मकान नहीं होगा, तो हम अच्छी पेंटिंग का क्या करेंगे, हम अच्छी इमारत का क्या करेंगे जब हमारे पास वो सारी चीजें ही नहीं। तो साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपसे कहूंगा कि हमेशा अपने माइंड को चैलेंज करो। कभी ये मत मानो कि कोई आपको बता रहा है कि वो एकदम सच है, ट्रूथ है। नो, चैलेंज इट और एक्सपेरिमेंट, ऑलवेज डू एक्सपेरिमेंट। Experiments are sometimes dangerous, but even dangerous experiment they teach us many things. Again, I will give an example of Thomas Alva Edison. उनका एडिसन के बारे में मैं बहुत छोटा था, आई थिंक इन क्लास 6 to क्लास 7, मैंने उसकी मेरे किताब में एक चैप्टर हुआ करता था। उस चैप्टर का नाम था द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। किसी ने पढ़ा है? अब शायद चेंज हो गया। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ये जो चैप्टर था ये थॉमस अल्वा एडिसन के ऊपर था। तो जब वो छोटा बच्चा था तो उसने देखा कि चील जो होती है, चील, ईगल्स, काइट्स, ये हवा में उड़ते हैं। तो उसने सोचा ये क्यों उड़ते हैं हवा में? तो उसने देखा कि ये कीड़ों को खाते हैं, इसलिए ये हवा में उड़ते हैं। तो उसने क्या किया, कीड़ों का जूस बनाया। आवाज नहीं आ रही ना? आगे तो आ रही होगी।
तो उसने देखा कि चील हवा में उड़ रही है, और चील क्यों हवा में उड़ रही है उसके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो उसने देखा कि चील जमीन में कीड़ों को खाती है। तो उसने सोचा हो सकता है कि कीड़ों को खाने से कुछ ऐसी ताकत आ जाती है चील में कि वो हवा में उड़ने लगती है। तो उसने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया जाए। उसका दिमाग एकदम, उसने शरारत करना नहीं सोचा, वो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था। उसने क्या किया कि फिर कीड़ों का जूस बनाया, कई कीड़े उसने इकट्ठे किए, उसका जूस बनाया और उसने अपने नौकर की लड़की को पिला दिया। उसने ये सोचा कि ये शायद ये लड़की भी उड़ने लगे। उसका उद्देश्य गलत नहीं था, उसके दिमाग में शरारत नहीं थी। उसने सोचा वाकई, क्योंकि मैंने चील को उड़ते देखा और चील कीड़े मकोड़े खाती है, तो हो सकता है कीड़े मकोड़े खाने के पश्चात ये लड़की भी उड़ने लगे हवा में। हालांकि वो लड़की बीमार पड़ गई, एडिसन की बहुत पिटाई हुई बाद में, लेकिन ये नहीं दर्शाता है कि वो फेल हुआ। दर्शाता ये है कि उसमें एक्सपेरिमेंट करने का मादा था, पोटेंशियल था, और उसने एक्सपेरिमेंट करने की आदत छोटे से ही डाल दी थी। इतनी कम उम्र का था जब उसने ये पहला एक्सपेरिमेंट किया। और उसके बाद आप सोच लो, सब किसी समय दुनिया में किसी में समय सबसे ज्यादा पेटेंट, जब आप कोई इन्वेंशन करते हो, कोई नई चीज आप आविष्कार करते हो, तो उस चीज पे आपको पेटेंट फाइल करना होता है। पेटेंट फाइल करने के बाद कोई भी अगर उस चीज को इस्तेमाल करता है तो आपको रॉयल्टी मिलती है, आपको पैसा मिलता है। तो किसी समय सबसे ज्यादा पेटेंट्स थॉमस अल्वा एडिसन के पास थे, और वो शुरुआत में कुछ नहीं, बिकॉज ऑफ साइंस और बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी, बिकॉज ऑफ हिज हैबिट कि उसको एक्सपेरिमेंट करना था। तो एक्सपेरिमेंट से कभी मत भागना, प्रयोग हमेशा करते रहे, हमेशा, चाहे आपकी कितनी भी उम्र हो, चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो, ऑलवेज डू एक्सपेरिमेंट एंड ऑलवेज ट्राई टू डिफाई एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, एग्जिस्टिंग इश्यूज, जो आपको कह रहा है कि भाई एक समय ये था कि लोग कहते थे कि हवा में कोई उड़ ही नहीं सकता, हवा में कोई उड़ नहीं सकता, सब कहते थे मजाक कर रहा है, तो हवा को चैलेंज कर रहा है, कैसे उड़ पाएगा। लेकिन फिर आदमी हवा में उड़ने लगा, आदमी ने प्लेन बनाए। आज से 150 साल पहले वो संभव नहीं था। आज के 500 साल पहले लोग ये कहते थे कि दुनिया फ्लैट है, दुनिया राउंड नहीं है। तो फर्डिनेंड मैगेलन ने कहा कि नहीं, मैं तो दुनिया का चक्कर लगाऊंगा। हालांकि पूरा कंप्लीट करके वो नहीं पहुंच पाए, फिलीपींस पे मारा गया वो, लेकिन उसने, उसके जो क्रू था वो पहुंच गया वापस पोर्तुगल, यूरोप। उन्होंने बताया नहीं, दुनिया तो राउंड है। पहले तो जाते नहीं थे, सोचते थे दुनिया का एक छोर आएगा तो फिर मेरा जहाज नीचे गिर जाएगा और हम बढ़ जाएंगे। आज से केवल 500 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। ये कैसे संभव हुआ? करेज, ऑडेसिटी, ऑडेसिटी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, ऑडेसिटी टू डिफाई एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, कि भाई मैं जो है मैं उस चीज को नहीं मानता हूं, मैं खुद सोचूंगा। अगर मैंने वो खुद चीज साबित कर दी तो मैं मानूंगा वो सच है, नहीं तो फिर वो सच नहीं है। वो एक ऐसी चीज है जो अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है, वो चीज अभी तक साबित नहीं है, वो किसी ने प्रूव नहीं किया, केवल किसी ने एजम्पशन बना लिया है। एजम्पशन बना लिया है कि भाई मैं चांद तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन फिर चांद तक भी आदमी पहुंचा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद तक पहुंचा। तो मैं केवल इतना कहूंगा आप बच्चों से कि आप एक्सपेरिमेंट्स हमेशा करते रहो, हमेशा क्वेश्चनिंग करते रहो, हमेशा लॉजिक पे ध्यान दो। लॉजिक मतलब दिमाग है आपके पास, तो दिमाग हम लोग के पास इस्तेमाल करने के लिए। संस्कृत में मैंने एक वो पढ़ी थी, सुभाषितानी हमारे यहाँ आती थी, एक श्लोक था, और श्लोक मैं भूल गया हूँ लेकिन उसका अर्थ मुझे पता है। अर्थ बेसिकली ये था, पशुओं में और इंसानों में क्या फर्क होता है। जो पशु होते हैं उनका सर उनके पेट के नीचे होता है, उनका सर अक्सर पेट के नीचे झुका रहता है। चाहे वो कैटल का हम ले लें, चाहे डॉग का ले लें, चाहे कोई भी पशु, मैक्सिमम पशु के साथ यही होता है कि इसका बेसिकली मतलब ये है कि वो अपने उदर मतलब अपने पेट को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं अपने दिमाग से, इसलिए उनका सर उनके पेट से, पीठ से नीचे। इंसान का सर उसके पेट के ऊपर होता है। तो इंसान को पेट से ज्यादा प्राथमिकता अपने दिमाग को देनी चाहिए। वो संस्कृत का एक श्लोक था, हजारों साल पहले हमारे महापुरुषों ने लिखा होगा, लेकिन उसका मतलब बिल्कुल अभी भी एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है कि हम लोग को अपने पेट से ज्यादा प्राथमिकता अपने माइंड, अपने दिमाग को देनी है। तो बच्चों, इसका विशेष ध्यान आप लोग रखना
और पेट का मतलब ये नहीं है कि आपको सुबह शाम का खाना, नो। पेट का मतलब बेसिकली मतलब है पैसा, इनकम। तो केवल पैसे के पीछे नहीं भागना है, ऐसी चीज के पीछे भागना है जिससे आपको संतुष्टि होते हो, आपके दिमाग का इस्तेमाल होता हो सही डायरेक्शन, ब्रेन का इस्तेमाल होता है, आपके माइंड का इस्तेमाल होता है, और वो इस्तेमाल मैनकाइंड की सर्विस में, मानवता की सर्विस में, जिससे मानवता को फायदा मिले, सबको फायदा मिले। वो साइंस एक ऐसी चीज है जिससे अगर आप कुछ भी अच्छा करते हो तो सिर्फ एक आदमी को फायदा नहीं होता, उससे पूरे देश को फायदा होता है, पूरे विश्व को फायदा होता है। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ और मैं मुबारकबाद देता हूँ इस मैनेजमेंट को, स्कूल के मैनेजमेंट को, जिन्होंने इतना बड़ा एग्जीबिशन रखा है, इतना अच्छा एग्जीबिशन रखा है। आप इसको अच्छे से देखें और बेहतर करने का प्रयास करें, साइंस में अच्छी रुचि लें। हर एक स्टूडेंट को साइंटिस्ट होना चाहिए, मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ, हर एक स्टूडेंट को होना चाहिए साइंटिस्ट। 12th के बाद वो देखे कहाँ उसको जाना, लेकिन 12th तक उसको एक्सपेरिमेंट्स और साइंटिफिक आउटलुक उसको हमेशा रखना चाहिए, जिससे कि वो आगे और अच्छा कर सके। स्कूल यही सिखाता है, हाउ टू क्वेश्चन थिंग्स, हाउ टू लर्न द आर्ट ऑफ लर्निंग थिंग्स, हाउ टू inculcate discipline, how to develop loyalty towards your nation, how to develop brotherhood among ourselves, how to develop the principle of equality, secularism। सारी चीज़ें हमें स्कूल सिखाता है, स्कूल की पुस्तकें सिखाती हैं। कोई नहीं आता स्कूल में, ये नहीं कोई देखता कि मैं इस जाति का हूँ, वो दूसरे जाति का है, वो इस धर्म का है, वो उस धर्म का है। स्कूल में सबकी एक यूनिफॉर्म होती है, सब एक साथ बैठते हैं, और केवल उनका टैलेंट, उनकी पढ़ाई मैटर करती है और कोई चीज़ नहीं करती। अगेन इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अच्छे से मेहनत करें आप लोग, और पेरेंट्स उनका साथ दें। पेरेंट्स अपने बच्चे जहाँ भी जाना चाहते हैं उनके साथ दें, अपनी कोई भी चीज़ थोपे ना उन पे। कई बार होता है पेरेंट्स को लगता है कि मैं इस चीज़ में फेल हो गया हूँ, मैं आर्मी में नहीं जा पाया तो मेरा लड़का आर्मी में ज़रूर जाए। अपने सपने उन पे मत थोपिए, अपने सपने, आप किसी चीज़ में फेल हो गए तो उनको थोपने का प्रयास मत करें। बच्चे जहाँ जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उस फील्ड में उनको मौका दें, उनका प्रोत्साहन करें, उनको वैसा एनवायरनमेंट दें कि वो उस फील्ड में अच्छा कार्य करें। ज़रूरी नहीं है कि पुलिस अधिकारी का लड़का पुलिस में ही जाएगा, आर्मी का आर्मी में जाएगा, डॉक्टर का डॉक्टर में जाएगा, वो कहीं भी जा सकता है, उसका जहाँ इंटरेस्ट है। तो इनके इंटरेस्ट को एक अच्छा एनवायरनमेंट दें जिससे कि वो बहुत बेहतर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। I declare CJC Brainiac Expo 2K22 open. Thank you. Put your hands together and give a big round of applause.